What is a linked list? It is a linear data structure. So what do you mean by the linear? Data will be arranged in a linear fashion, right? One after another. And how to define a linked list? A linked list is a collection of a nodes, and one node is divided into two parts. The first part is called as a data, and the second part is called as address or the link field. The data part will hold the actual data, whereas the link field will hold the address of next node. Okay, so that is about a linked list. This is a declaration of a node. As it is a collection of a dissimilar data type, you have to use a structure to declare a node in a C. Okay, so struct node, integer data, and struct node pointer of next. मैंने बोला था कि ये चीज को क्या बोला जाता है? If the function is calling itself, if the structure is referring itself, तो उस टाइप के structure को क्या बोला जाता है? Self-referential structure. Yes, these are called as the self-referential structure. Always remember, if you are writing the same structure inside the structure, right, and you are creating the object of that structure, meaning is that such a type of structures are called as self-referential structure. And the example of a self-referential structures are nothing but the nodes in linked list. Linked list के अंदर जो भी nodes होते हैं, that is the example of self-referential node. Sorry, self-referential structure. So that is about the structures. Then we have actually seen there are three types of a linked list that we are going to cover in this particular subject: singly linked list, doubly linked list, and the circular linked list. Okay, singly और doubly ये नाम किसके बेसिस पे दिए थे हमने? On the basis of number of address fields. अगर एक ही एड्रेस फील्ड होता है तो उसको बोला था हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट. अगर दो एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट का भी और प्रीवियस का तो उसको बोला था हमने डबली लिंक लिस्ट. और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या था? अगर लास्ट वाला जो नोड है वो नोड इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द नल इफ दैट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड तो हम लोगों ने उसको बोला था सर्कुलर लिंक लिस्ट. सर्कुलर के अंदर भी डबली भी आता है और सर्कुलर के अंदर सिंगली भी आता है. रिमेम्बर. तो टोटल कितने एल्गोरिथम्स देखने हमने यहाँ पे? तो 4: सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट. ओके, सो दैट इज अबाउट द लिंक लिस्ट. और क्या बोला था मैंने? जो भी लिंक लिस्ट होगा ना आप लोगों का, वट एवर द लिंक लिस्ट दैट यू हैव ड्रॉन, यू फर्स्ट यू हैव टू कंसिडर द फर्स्ट नोड एज अ हेड और द स्टार्ट, so that compiler can recognize, yes, this is the starting point of my linked list, right? So you have to name the first node as a head either or a start, and the last node, how to recognize the last node? The last node will have a null in the address field. Okay, जिसके भी मतलब नोड के एड्रेस फील्ड में नल होगा, that is the last node in your linked list. Okay, तो ये हो जाता है पूरा. Now next we have started with the malloc function. मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. तो what is the use of this malloc? तो malloc functions are used to assign memory at a runtime. Okay, to assign memory at a runtime. See, हम लोगों ने stack का प्रोग्राम देखा था, हम लोगों ने queue का प्रोग्राम देखा. Stack and queue, these are all हम लोगों ने इम्प्लीमेंट जो किया था, we have implemented this with the help of a array. array के बेस पे हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया था. And there was one drawback. And what was the drawback? Once the size is full, right? Once the array is full, you are not able to insert the new elements, है ना? तो ये वो क्या हो जाता है? स्टैटिक हो जाता है. So that is one of the drawback. तो वो drawback को overcome करने के लिए we are having a dynamic memory allocation. And this dynamic memory allocation, it works on the basis of users will. अगर यूजर ने बोला कि एक ही वैल्यू रखनी है तो वो एक ही वेरिएबल को मेमोरी असाइन करेगा. अगर दो को बोला तो दो को, 3 को बोला 3, 100 बोले तो 100, 1000 बोले तो 1000. So this is a dynamic memory allocation on the basis of users will. Now you are going to allocate memory to your variables. Okay, तो यहाँ पे जो भी सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब एल्गोरिदम आता है, we are going to implement this with the help of a dynamic memory allocation. मैंने जब हम लोगों ने स्टैक और क्यू देखा था तब भी मैंने आप लोगों को बोला था you can implement stack and queue in a static way as well as in a dynamic way, है ना? तो स्टैटिक वे में करना होगा तो you have to use array. और अगर मुझे स्टैक और क्यू को डायनामिक वे से इम्प्लीमेंट करना होगा तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? तो मुझे यूज करना पड़ेगा लिंक लिस्ट, राइट? वहाँ पे ना बहुत सारे एल्गोरिथम्स है फॉर द लिंक लिस्ट. सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगली, सर्कुलर डबली, स्टैक और क्यू. टोटल 6 एल्गोरिथम्स है.
Okay, now before starting that, I want you to give you introduction about the malloc. ओके सो मैंने डायरेक्टली ले लिया है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका सिंटैक्स और वो क्या करता है उतना समझना है. ओके सो malloc function, it is useful for allocating the memory at a runtime. Okay, so the name malloc stands for the memory allocation. malloc, कोई लोग इसको malloc भी बोलते हैं, कोई malloc भी बोलता है, so it's okay whether you pronounce this as the malloc or the malloc, it is same, and it stands for memory allocation. Okay, memory allocation. तो ये क्या करता है एक्चुअली, अ malloc फंक्शन विल allocate memory to the variable at a run time. ये आपके वेरिएबल को रन टाइम पे मेमोरी असाइन करता है और इसके बाद में रिटर्न क्या करता है, तो इट विल रिटर्न यू द पॉइंटर. ओके, इट विल रिटर्न यू द पॉइंटर. कौन सा पॉइंटर रिटर्न करता है, तो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है. पॉइंटर ही क्यों रिटर्न करता है, सी अगर मैंने कोई भी जस्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लो, दिस इज अ पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, malloc 100 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ फ्लोट. तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, तो ptr नाम का जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को 100 मल्टीप्लाई बाय फ्लोट. फ्लोट का साइज कितना होता है, कितना लेता है फ्लोट, कितना बाइट्स लेता है, 4. अगर जीसीसी में कर रहे हो तो कितना लेगा, 4. चलो ठीक है, some compilers take 8, some compilers takes 4. okay, remember this part. So it किसी ने भी पूछा ना कि कितने बाइट लेता है, so you have to answer on the basis of a compiler. if you work on the gcc तो वो अलग लेगा, if you are working on a ANSI तो वो अलग लेगा, turbo c पे वो अलग लेता है. okay, try to find out some of the things like that. तो क्या करेगा ये, चलो मैं अब 4 बोल रहे हो, मैं 4 ही कंसिडर कर रही हूँ, राइट. हम लोग टर्बो पे काम कर रहे हैं. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बाइट्स होगा, 40 बाइट्स, 400 बाइट्स. तो ये पीटीआर को कितने बाइट्स की मेमोरी असाइन करेगा, 400 बाइट की मेमोरी असाइन करेगा. किस तरीके से करेगा, तो 400 वाले ब्लॉक तैयार होंगे. ओके, 400 ब्लॉक्स तैयार होंगे और उसके अंदर आप लोग कितने वेरिएबल स्टोर करवा सकते हो, तो यू कैन स्टोर 100 वेरिएबल्स. okay, you can store 100 variables of a float type in this ptr variable. So basically what you are creating, I am creating an array, राइट. मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, एक बेसिकली मैं एक एरे ही क्रिएट कर रही हूँ और ऐसा एरे क्रिएट कर रही हूँ कि जिसके साइज मुझे यूजर जो रन टाइम पे देगा उसके हिसाब से मैं उसकी मेमोरी क्या करती जाऊंगी, असाइन करती जाऊंगी. ओके, सो malloc फंक्शन, इट असाइंस मेमोरी टू द वेरिएबल एट अ रन टाइम. और ये malloc का सिंटैक्स कैसे होता है, तो malloc का सिंटैक्स होता है दिस टाइप, कास्ट टाइप, malloc and the size. Try to remember and try to understand this part. ptr, this is a variable. okay, this cast type and the pointer, this is the casting. okay, ये क्या रिटर्न करता है, तो malloc रिटर्न करता है, you can just write see here, it returns a pointer of a void, it returns pointer of a void. तो जिस टाइप की मेमोरी आप असाइन कर रहे हो ना, उस टाइप का ये क्या रिटर्न करेगा, उस टाइप का void पॉइंटर ये रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे होता है कास्ट टाइप पॉइंटर. उसके बाद में malloc, दिस इज अ फंक्शन, फंक्शन है तो क्या लेगा, पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू लेगा. तो वैल्यू में क्या देना है आप लोगों को, तो वैल्यू में देना है साइज. अगर मैंने 4 लिखा है यहाँ पे, राइट, इफ आई हैव रिटन अ 4, तो ये कितने बाइट की मेमोरी असाइन होगी, 4 की. अगर मैंने लिखा 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितनी होगी, 400, लाइक दैट. तो क्या कर रहा है, रन टाइम पे मेमोरी असाइन कर रहा है. और अगर मैं बोल रही हूँ ना ये नीचे वाला, दैट ptr इज इक्वल टू फ्लोट पॉइंटर malloc 100 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ फ्लोट. तो व्हाट इज द साइज ऑफ, एक्चुअली size of, again it is a function that returns the size. okay, ये डेटा जो भी डेटा टाइप आप लोग उसको पास करते हो उसकी ये साइज रिटर्न करता है. तो सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है साइज ऑफ इंटीजर, तो कितना रिटर्न करेगा, जो अगर हम टर्बो पे काम कर रहे हैं तो 2 बाइट्स, अगर जीसीसी पे कर रहे हैं 4 बाइट्स. ओके, सिमिलरली अगर मैंने साइज ऑफ लिखा फ्लोट, तो ये रिटर्न करेगा 4 और द 8 डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर. ओके, मैंने कैरेक्टर लिखा तो कितना देगा, 1 बाइट देगा. सो व्हाट इज दिस साइज ऑफ, इट इज वन ऑफ द फंक्शन that returns what, that returns the size of a data type that will pass. यहाँ पे मैंने पास किया है float. तो ये कितना होगा, साइज ऑफ फ्लोट कितना देगा, तो ये रिटर्न करेगा आप लोगों को 4.
तो ये मैलॉक 100 मल्टीप्लाई बाय 4 कितनी बाइट्स की मेमोरी असाइन होगी, तो 400 बाइट्स की मेमोरी असाइन होनी है पीटीआर को. नाउ हाउ दिस इज यूजफुल फॉर यू इन इम्प्लीमेंटिंग द लिंक लिस्ट. ओके, ये आप लोगों को लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करने में किस तरीके से हेल्प करेगा. अगर यूजर बोल रहा है कि मुझे सिर्फ एक ही नोड देना है, एक ही नोड बनाना है, तो वो एक ही टाइम नोड बनेगा. अगर यूजर ने बोला कि मुझे 2 बार नोड बनाना है, तो ये 2 बार बनेगा. 3 बार बोला तो 3 बार, राइट. सो हम लोग कहाँ पे भी ऐसे नहीं कर रहे कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है इंट a ऑफ 100 और यूजर सिर्फ 100 ही नंबर्स डाल सकता है. अगर यूजर को एक की जरूरत होगी तो एक ही डालेगा, 100 की जरूरत होगी तो 100 डालेगा. सो व्हाट वी आर अचीविंग हियर, जो मेमोरी लॉस हो रहा था इन अ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, वी आर जस्ट ओवरकमिंग फ्रॉम दैट ड्रॉबैक. ओके, वो जो ड्रॉबैक था उससे हम लोग ओवरकम कर रहे हैं कि रन टाइम पे इफ यू इम्प्लीमेंटिंग योर प्रोग्राम इन अ स्टैटिक वे, then it is not possible for you to run the to increase or to shrink the size of your data of your variable. ओके, वो रन टाइम पे आप लोग श्रिंक भी नहीं कर सकते और आप लोग ग्रो भी नहीं कर सकते. मैं बढ़ा भी नहीं सकती और मैं छोटा भी नहीं कर सकती हूँ. सो दैट वाज अ डिसएडवांटेज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो डिसएडवांटेज ओवरकम हो रहा है. किस तरीके से हो रहा है, तो साइज ऑफ को मैं जो भी पास करूंगी, ओके, उतने का ही वो क्या क्या असाइन करेगा, उतने ही ब्लॉक का वो मेमोरी असाइन करने वाला है. ओके, सो दैट इज अबाउट अ मैलॉक. अगर अभी अभी क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को. पहले चलो मुझे क्या करना है, तो मैंने एक लेट मी स्टार्ट नोटपैड. 2 मिनट से देखो, सबसे पहले क्या कर रही हूँ, तो आई विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर, है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक नोड को मेमोरी असाइन करने की ट्राई कर रही हूँ, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डिक्लेयर वन नोड. दिस इज द डिक्लेरेशन स्ट्रक्ट नोड. कितने पार्ट में डिवाइड होता है ये नोड? 2 पार्ट में. पहला पार्ट क्या होता है, डेटा. सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर. उसी के अंदर उसी स्ट्रक्चर क्या क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट. तो मैं फर्स्ट जो डेटा है, यू कैन टेक एनी डेटा टाइप. आप इंटीजर ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, कैरेक्टर ले सकते हो. आई एम राइटिंग द इंटीजर, सो इंटीजर डेटा. ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट किसमें डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड होता है एड्रेस में. किसका एड्रेस स्टोर करता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस. तो यहाँ पे बनता है आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्ट नोड. इसका नाम क्या बोला था मैंने, आइदर यू कैन गिव अ लिंक और यू कैन गिव द नेक्स्ट, कुछ भी ले सकते हो. सो मैंने दे दिया लिंक. तो ये हो गया मेरा एक नोड डिक्लेयर कर लिया मैंने. हियर इटसेल्फ आई एम क्रिएटिंग द फर्स्ट नोड. और फर्स्ट नोड को मैंने नाम क्या देने के लिए बोला था, आइदर स्टार्ट और अ हेड. फर्स्ट नोड जो भी होगा उसको आपको नेम देना है स्टार्ट और हेड. तो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द स्टार्ट, राइट. अभी मुझे क्या करना है, तो मैलॉक थ्रू मुझे स्टार्ट को वैल्यू असाइन करनी है ना. ये स्टार्ट को मुझे रन टाइम में मेमोरी असाइन करनी है. तो किस तरीके से करना है, किसको मेमोरी असाइन करनी है, स्टार्ट को. सो व्हाट आई विल राइट हियर, स्टार्ट, राइट. यहाँ पे क्या लिखना है, तो आई वांट टू कन्वर्ट, है ना, सॉरी, आई वांट टू असाइन विद द हेल्प मेमोरी विद द हेल्प ऑफ अ मैलॉक फंक्शन. तो यहाँ पे क्या लगेगा, मैलॉक. मैलॉक में पास क्या करना है, साइज ऑफ. किसकी साइज पास करनी है, ये स्ट्रक्चर की. अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता भी सकती हूँ, राइट, कि ये कितना मेमोरी लेगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट वी आर हैविंग वन फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज व्हाट, कौन सा फंक्शन है जो हम लोगों को साइज देता है, तो दैट इज द साइज ऑफ फंक्शन. व्हाट आई विल पास हियर, साइज ऑफ. साइज ऑफ को पास क्या करूंगी, किसकी साइज चाहिए मुझे, नोड की. नोड का नाम क्या है, स्ट्रक्ट नोड. तो व्हाट आई विल पास हियर, आई विल पास द डेटा टाइप, दैट इज द स्ट्रक्ट नोड, right. So this is how you can assign memory at a runtime with the help of a malloc function to the node in a linked list. एक linked list के node को आप लोग इस तरीके से run time पे memory assign करवा सकते हो. जिसको memory assign करना है वो is equals to malloc size of. Always remember size of को pass किया जाता है data type. Either you can pass an integer, you can pass a float, you can pass a character, string, कुछ भी pass कर सकते हो. लेकिन राइट नाउ हम लोगों ने जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्ट्रक्ट नोड. तो यहाँ पे व्हाट आई विल पास स्ट्रक्ट नोड. क्लियर है ये, ओके. सो द फर्स्ट स्टेप जो भी होता है आप लोगों का लिंक लिस्ट के अंदर, that you have to create a first node, and to create a first node you have to make use of a malloc function. इस तरीके से you have to, ओके. अभी एक यहाँ पे जो हम लोगों ने सिंटैक्स देखा था, उस सिंटैक्स में से लिखा था कि you have to typecast this. ओके, आप लोगों को इसको टाइप कास्टिंग करनी रहती है. अभी सपोज ये इंटीजर रहता ना, अगर जो मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ अगर वो इंटीजर रहता, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से टाइप कास्टिंग कर लेती इंटीजर.
बट राइट नाउ हमारा जो नोड है उसका टाइप क्या है, तो उसका टाइप है यूजर डिफाइंड टाइप, तो उसका नेम हम लोगों ने क्या दिया है, तो उसका नेम दिया है हम लोगों ने स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पे जो पॉइंटर भी बनेगा वो पॉइंटर भी किसका बनेगा, तो स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर बनना है। आई गेटिंग दिस पार्ट, आई गेटिंग दिस पार्ट, व्हाई आई हैव रिटन लाइक दैट। कोई क्वेश्चन होगा ना यहाँ पे तो अभी पूछ लेना। ओके, मैम वहां पे स्टार क्यों लिखा है? बिकॉज दिस malloc फंक्शन इट रिटर्न्स void pointer। ओके, जो भी मेमोरी का स्टार्टिंग होता है ये इसका पॉइंटर आप लोगों को भेज देगा, सो दैट यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम दैट स्टार्टिंग एड्रेस। लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस मोर। ओके, एक बार मुझे फिर से स्क्रीन शेयर करने दो। व्हाट एक्चुअली द malloc फंक्शन रिटर्न्स, just read here. The malloc function reserves a block of memory of the specified number of bytes and it returns a pointer of a void. This is a syntax only. और ये रिटर्न क्या करता है, इसका जो भी stdlib, okay, let me write here, ये जो malloc फंक्शन है, ये malloc फंक्शन है एक हेडर फाइल में, that header file is stdlib। ओके ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी हाँ मैंने देखा नहीं। सो इट इज बाय डिफॉल्ट गिवन इन stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो इसका जो भी डेफिनेशन दिया है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, दैट डेफिनेशन इज लाइक दैट malloc, और ये malloc रिटर्न जो करता है दैट इट विल रिटर्न अ void pointer। ओके, सो ये क्या रिटर्न कर रहा है, void pointer रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो भी कोई वेरिएबल को हम लोगों को वैल्यू असाइन करनी है, वी हैव टू टाइपकास्ट दैट वेरिएबल राइट टू द पॉइंटर। तो ये पॉइंटर में करना ही पड़ता है, एरर नहीं आता है। अगर मैंने वो नहीं भी किया ना, मैंने वो नहीं भी लिखा दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्लोट पॉइंटर, ये नहीं भी लिखा तो भी एरर तो नहीं आएगा, सिर्फ एक वार्निंग आती है दैट टाइप कास्टिंग मस्ट बी देयर। तो टाइप कास्टिंग क्यों करना पड़ता है मैलॉक के अंदर, तो मैलॉक का जो भी डेफिनेशन दिया है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, बाय डिफॉल्ट द डेफिनेशन इज गिवन एंड दे सेड दैट इट रिटर्न्स द वॉइड पॉइंटर एंड दैट इज द रीजन व्हाई जिस किसी भी वेरिएबल को आप लोग मैलॉक से वैल्यू असाइन कर रहे हो, आप लोगों को उसको टाइपकास्ट करना पड़ता है विद द टाइप ऑफ वेरिएबल जिसकी आप जितने बाइट की आपको मेमोरी असाइन करनी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर क्या कर रहे हैं, तो पॉइंटर को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, किस टाइप की मेमोरी असाइन हो रही है, फ्लोट हो रही है, तो इसको टाइपकास्ट किसके साथ करना पड़ेगा, फ्लोट पॉइंटर। अगर इंटीजर होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इंटीजर होता और आप लोग इंटीजर की वैल्यू असाइन कर रहे होते यहाँ पे, तो ये फ्लोट के जगह पे व्हाट यू नीड टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन द इंटीजर पॉइंटर। समझ में आ रहा है? ओके, तो किसके साथ आप लोगों को टाइपकास्ट करना पड़ेगा, इंटीजर के साथ। तो अभी हम लोग किस टाइप की मेमोरी असाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड की, तो हम लोगों को टाइपकास्ट किससे करना पड़ेगा, तो स्ट्रक्ट नोड से ही टाइपकास्ट करना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइप कास्टिंग एंड ऑल दोस थिंग। जब एरर आएगा प्रोग्राम लिखते वक्त तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी के लिए भूल जाओ, ये जो टाइप कास्टिंग लिखा है अभी के लिए भूल जाओ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना इतना याद रखो, मैलॉक और उसको पास का क्या करना है, तो उसको पास करना पड़ता है टाइप ऑफ अ डेटा, और हम लोग किस टाइप के डेटा को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वी आर असाइनिंग वैल्यू टू द स्ट्रक्ट नोड राइट। हम लोग किसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पास भी क्या करना पड़ेगा उसको, तो इसको पास करना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड। राइट नाउ फॉरगेट अबाउट दिस। ओके, ये जब एरर आएगा ना मैं तब बता दूंगी, इतना याद रखो अभी। तो मैलॉक टू कैसे वैल्यू असाइन होती है, तो जिस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ ऑपरेटर, और उसके बाद में आप लोगों को पास क्या करना है, तो उसको पास करना पड़ता है आप लोगों को वेरिएबल, जिस डेटा टाइप जिस टाइप जितने जितने बाइट का आप लोगों को मेमोरी असाइन करनी है। राइट नाउ मुझे किसकी मेमोरी असाइन करनी है, तो मुझे स्ट्रक्ट नोड को मेमोरी असाइन करनी है। सो दैट इज द रीजन व्हाई साइज ऑफ को क्या पास किया हुआ है, तो साइज ऑफ को पास किया है स्ट्रक्ट नोड। क्लियर है अभी? ये टाइप कास्टिंग भूल जाना अभी। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आस्क। गिविंग यू 2 मिनट्स। कुछ यहाँ पे अभी तक मैंने जितना भी लिया है, कुछ भी डाउट होगा प्लीज आस्क। किसी को कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया है? पूछना है कुछ?
किसी को कुछ पूछना है? ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. ओके, डाउट है किसी को? Ma'am, can you explain me again? ओके, व्हाट मतलब स्ट्रक नोड या Starting से हाँ? मैम लेट ज्वाइन किया था ना. You were there in the last lecture. I hope so. Yeah, Right? No, 45. So I think Yeah. the concept of linked list is clear, right? Yeah. Okay. चलो एक बार कर देती हूँ फिर से. 2 मिनट. Just give me 2 minutes. ओके, सी आज क्या देखा है हम लोगों ने? सिर्फ malloc फंक्शन देखा है. वो इसके लिए देखा है कि बिकॉज एल्गोरिदम में यू विल सी दिस malloc फंक्शन. तो malloc क्या होता है? A malloc, it is a function in a C that assigns memory at a runtime to the variable. इसको कोई भी वेरिएबल को रन टाइम को मेमोरी असाइन करनी रहती है, तो आप लोगों को यूज करना पड़ता है malloc फंक्शन, राइट? ये malloc क्या लेता है? तो malloc लेता है पैरामीटर, and that parameter is the variable or a data type जिसके आप लोगों को मेमोरी असाइन करनी है. अब यहाँ पे ना आई एम जस्ट राइटिंग समथिंग इंटीजर a. ओके, अब ये a को मुझे क्या करना है? तो रन टाइम पे मेमोरी असाइन करनी है. किस टाइप की मेमोरी है? इंटीजर वाली मेमोरी है. सो व्हाट आई विल राइट a इज इक्वल्स टू, मुझे ना यहाँ पे एरे बनाना है. कितने का एरे बनाना है? सपोज 50 का. अभी दो ऑप्शन है आप लोगों के पास कि इधर मैं यहाँ पे 50 वाला एरे बना दूं. ओके, ये हार्ड कोडिंग हो जाएगी. तो यूजर अगर चाहता है तो ये 50 का ही एरे बनेगा. 50 के आगे ये नहीं जाने वाला है, राइट? बट सपोज आई वांट टू असाइन मेमोरी एट अ रन टाइम. व्हाट आई विल डू हियर? I will write a malloc function. Okay, abhi this is a static implementation. I will just write here, this is a static way. Now अगर मुझे इसको रन टाइम में मेमोरी असाइन करनी है, what I will write? I will just declare one pointer variable. We know pointer क्या करता है? तो pointer मेमोरी एड्रेस पे लेके जाएगा. And what we want here, तो मुझे a का एक एरे बनाना है. कितने मेमोरी वाला बनाना है? सपोज 50 कितने वेरिएबल वाला बनाना है? तो 50 वेरिएबल्स वाला. तो ये a ऑफ पॉइंटर मुझे कहाँ पे लेके जाएगा? स्टार्टिंग ऑफ द मेमोरी एड्रेस. जो भी a का स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस होगा वहां तक ये मुझे लेके जाएगा. उसके आगे 50 नंबर्स तो मुझे ऐसे ही मिल जाने वाले. व्हाई? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग एन एरे. और अगर मैं एरे क्रिएट कर रही हूँ तो इट इज अ लीनियर कलेक्शन, है ना? एक के बाद में एक ही मुझे नंबर्स क्या होते जाएंगे? मिलते जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर द एरे इन अ डायनामिक वे. ओके, एरे इस तरीके से मैं डायनामिक वे से क्रिएट कर सकती हूँ. लेकिन अभी राइट नाउ यहाँ पे कोई भी मेमोरी और किसी भी मतलब कोई भी ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है. सिर्फ एक ए क्रिएट हुआ है और उसको कुछ मेमोरी एड्रेस होगा दैट इज जस्ट क्रिएटेड. हम लोगों ने क्या देखा था? तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मेमोरी असाइन करनी है. किस तरीके से करनी है? डायनामिक वे से. तो डायनामिक आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा malloc फंक्शन. malloc को क्या पास करना पड़ता है? तो malloc लेता है पैरामीटर. कौन सा पैरामीटर लेता है? तो कितनी बाइट की मेमोरी असाइन करनी है. चलो मुझे कितने कितने साइज वाला एरे बनाना है? सपोज 50. तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय एरे है. कौन से टाइप का होगा? इंटीजर. सो व्हाट आई विल पास हियर? आई विल जस्ट पास हियर साइज ऑफ. किसकी साइज लेनी है इसको? तो डेटा टाइप की साइज लेनी है. किस टाइप का डेटा टाइप है? इंटीजर. सो दिस इंटीजर. तो ये क्या बन जाएगा? अभी ए नाम का एक कोई भी मेमोरी एलोकेशन बन जाएगा. ओके, एक ए ऐसे बनेगा. लेट मी जस्ट राइट हियर. ओके, ए मेमोरी लोकेशन में एक इंडिकेटर बन जाएगा ए. इसको इसके कोई मेमोरी एड्रेस होगा. सपोज 2000 ये मेमोरी एड्रेस होगा और 2000 से लेके 50 तक की मेमोरी पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाएगी. गेटिंग? पहला जो एड्रेस होगा 4 बाइट लेता है ना, ये 2204. इसके बाद में 2208, राइट? लाइक दैट. गेटिंग दिस पार्ट? ये 50 तक का क्या हो जाएगा? एरे बन जाएगा. किस तरीके का एरे बना? ये बना डायनामिक. क्यों बना डायनामिक? बिकॉज यूजर ने मुझे 50 दिया था. अब ये 50 को मुझे हार्ड कोड करने की जगह व्हाट आई कैन टेक द साइज फ्रॉम द यूजर. जो भी एरे की मुझे साइज लेनी है, आई कैन टेक दैट साइज फ्रॉम द यूजर. सो अगर मुझे n यूजर ने दिया है तो यूजर कैन गिव मी 5, यूजर कैन गिव मी 50, यूजर कैन गिव मी 100. गेटिंग दिस होल थिंग कैसे होता है ये डायनामिकली? समझ में आ रहा है?
Why this is Yes, ma'am. right? Why is this called as a dynamic? Because n की साइज यूजर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 50 का तो मैंने बना दिया, चलो मैंने यहाँ पे 100 का भी बना दिया, और उसके बाद में ना मैं यूजर से n की वैल्यू ले रही हूँ, और उसके बाद में आई एम एंटरिंग द वैल्यूज, फिर भी 100 के आगे तो ये एरे नहीं जाने वाला है. दिस इज द स्टैटिक वे, ये नहीं बढ़ेगा, 100 के आगे नहीं बढ़ना है. बट इफ यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग लाइक दैट इंट पॉइंटर ऑफ ए, तो n की यूजर जो भी वैल्यू देगा ना, वहां तक का ये एरे बनने वाला है. सो मेमोरी वेस्ट भी नहीं हो रही यहाँ पे. सो वी आर actually assigning memory in a what, in a smart way, है ना. So that is about a dynamic memory allocation. तो इसके लिए यूज क्या होता है, तो 101 also means okay, you are starting from 0 to 101. Yes, Gaurav, unmute. अगर इसमें मैंने इनिशियली साइज 100 देके रखा है ना, एंड मैंने यूजर से इनपुट लिया नहीं, यूजर ने बोला 101 एलिमेंट चाहिए, मतलब साइज चाहिए. कहाँ पे, स्टैटिक में, डायनामिक में? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. चलो मैंने ये 100 वाला एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हाँ, उसके आगे Even I am not getting it properly actually. सी एक समझ लो, अगर मैंने यहाँ पे 100 का एरे लिख दिया ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर मोस्टली कितने एलिमेंट्स आएंगे. अगर मैं 0 से 100 तक लेके जा रही हूँ, इफ आई एम रनिंग द लूप फ्रॉम i is equals to 0, ओके, देन i लेस देन इक्वल्स टू 100, तो इसके अंदर जाने हैं कितने एलिमेंट्स, तो इसके अंदर जाएंगे 101 एलिमेंट्स. 101 के आगे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल. और अगर मैंने 100 का एरे बना भी दिया, राइट, और यूजर ने मुझे ना सिर्फ 50 एलिमेंट्स दिए, कितने एलिमेंट्स दिए यूजर ने, सिर्फ 50, तो 50 जो हम लोगों ने एडिशनली जो भी हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की है, वो क्या जाती है, वेस्ट जाती है. सो दैट इज अ स्टैटिक वे. और अगर यहाँ पे मैं इंटीजर पॉइंटर ऑफ ए लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैंने हार्ड कोड नहीं किया है. आई हैवंट डिक्लेयर द साइज एट अ कंपाइल टाइम. मैंने ऐसे नहीं किया कि ए ऑफ 100, ए ऑफ 200. सो अगर यूजर मुझे यहाँ पे देता है कि 100 का एरे बनाना है, तो 100 का बनेगा. इफ यूजर सेज दैट आई वांट टू क्रिएट अ एरे ऑफ 101, तो 101 का बनेगा. 2000 का बोला तो 2000, 50 का बोला तो 50, 5 बोला तो 5, 4 बोलेगा तो 4. सो व्हाट इज दैट, मेमोरी आप लोगों का वेस्ट नहीं हो रहा है, एंड एट अ रन टाइम यू कैन इंक्रीज एंड यू कैन श्रिंक द साइज ऑफ योर वेरिएबल. गेटिंग दिस राइट नाउ? Yes, ma'am. ओके, आप लोगों ने मैलोक के फंक्शन मतलब किए नहीं है प्रोग्राम? No ma'am. आई विल डू वन थिंग. मेरे पास ना प्रीवियस बैच के आप लोगों के जो सुपर सीनियर्स है, उनके उनके मेरे पास कुछ मैनुअल्स है, मैंने सबमिट करवा लिए थे. कोई कॉपी नहीं करेगा उसमें से, बट आई विल बी शेयरिंग वन मैनुअल विथ यू. उन लोगों ने एक वर्ड फाइल बनाई है, तो उसमें जाके आप लोगों को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के प्रोग्राम सिर्फ देखने हैं. स्टार्टिंग के कोई प्रोग्राम्स मैंने लिए थे उन लोगों के, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस प्रोग्राम्स. 3 या 4 प्रोग्राम्स है, राइट. सो दिस इज अबाउट अ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. बस अब बहुत हो गया, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड विद द लिंक लिस्ट. हाँ, मुझे लिंक लिस्ट लेना है, सो मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रही हूँ अब इसके. तो अभी क्या करना है मुझे, तो दिस इज द लिंक लिस्ट, राइट. अभी यू देयर आर 3 प्रिमिटिव ऑपरेशंस. कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स ले लो, उसके अंदर 3 प्रिमिटिव ऑपरेशंस होंगे, इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च. अपडेट भी होता है, लेकिन अपडेट हम लोग नहीं करते. ओके, सो इंसर्ट, डिलीट एंड द सर्च. तो यहाँ पे भी लिंक लिस्ट के अंदर भी वी हैव टू परफॉर्म 3 प्रिमिटिव ऑपरेशंस. हम लोगों को इंसर्ट भी करना है, हम लोगों को डिलीट भी करना पड़ेगा, और हम लोगों को सर्चिंग भी करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑपरेशन we are going to see on a singly linked list. तो सबसे पहला ऑपरेशन देख रहे हैं हम लोग, that too on the singly linked list. अभी कौन सी पोजीशंस आती है और कहाँ पे आप लोग उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन. वन मोर थिंग, अभी इसके आगे थोड़ा आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठोगे और खुद भी ड्रॉ करते जाओगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, यू कैन ट्राई टू ड्रॉ योर डायग्राम्स एट योर ओन, और उसी तरीके से आप लोग वहाँ पे थोड़ा पॉइंटर एडजस्टमेंट हो सब कर मतलब ट्राई करना. ओके, तो अभी चलो कोई इंसर्ट, सबसे पहला जो ऑपरेशन है दैट वी आर गोइंग टू सी इज अ इंसर्ट ऑपरेशन, है ना. मैं सबसे पहले इंसर्ट करवा रही हूँ. तो इंसर्ट के लिए क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड.
whenever you are running your program for the very first time, okay, मैंने मेरा प्रोग्राम सबसे पहली बार कंपाइल किया है और रन हो रहा है, तो लिंक लिस्ट में तो एक भी नोड नहीं होगा. So whenever you are running your program for the very first time, meaning is that you are creating a node for the first time. अगर मैं फर्स्ट टाइम है मेरा प्रोग्राम रन कर रही हूँ, कंपाइल किया और रन किया है, तो मेरे पास तो कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है. व्हाई? बिकॉज ये जो भी आप लोग प्रोग्राम लिखते हो ये परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता है ना, ये परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा. जैसे भी आप लोगों का वॉइड मेन का कर्सर खत्म हो जाता है, वहां पे आप लोगों का जो भी मेमोरी एलोकेशन होता है वो सब निकल जाता है. सो मीनिंग इज दैट whenever you are inserting, okay, whenever you're calling your insert function, that insert function will create the node for the first time, right? तो insert function में यहाँ पे I'm writing some of the conditions, and first condition I'm writing that I'm inserting I'm inserting a node, okay, inserting a node for first time. So what do you mean by that? I'm creating a linked list. ओके, आई एम क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट. अभी तक मेरी लिंक लिस्ट बनी नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम रन किया, कंपाइल किया, तो मैं फर्स्ट टाइम क्या बना रही हूँ, तो मेरी लिंक लिस्ट बना रही हूँ. तो अब ऐसी जगह पे क्या करना है, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है. ओके, डायग्राम में क्या होगा, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंसर्टिंग अ नोड फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर मैं नोड फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, तो एक ही नोड बनेगा. ओके, एक ही नोड बनना है. सो आई विल जस्ट क्रिएट अ नोड. नोड क्या होता है, दिस इज लाइक दैट. कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, डेटा. सेकेंड पार्ट को क्या बोला जाता है, लिंक पार्ट. सो दिस इज माय नोड दैट आई हैव क्रिएटेड. अभी ये नोड क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम में क्या लिखना पड़ता है, तो whenever you are creating a node, right, in a program, meaning is that you are using a malloc function. तो आप लोग क्या कर रहे हो, तो malloc function लिख रहे हो. मैंने बोला था कोई भी नोड अगर आप फर्स्ट नोड होता है आप लोगों के लिंक लिस्ट के अंदर, उस नोड को बोला जाता है स्टार्ट. either you can give name as a start or the head. मुझे start की आदत है तो I will write a start here. Okay, so I'm creating a node, the first node as a start. So start is equals to, किस तरीके से क्रिएट होता है, तो नोड क्रिएट होगा इन अ डायनामिक वे. डायनामिक वे से क्रिएट होगा तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, malloc फंक्शन. malloc फंक्शन क्या लेता है, पैरामीटर. पैरामीटर क्या लेगा, फर्स्ट लेगा साइज ऑफ ऑपरेटर, और साइज ऑफ ऑपरेटर को पास क्या करना है, तो स्ट्रक्ट नोड पास करना पड़ेगा. So this is the struct node. So what you have done, I have created one node that is start is equals to malloc size of struct node. तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये इस तरीके से एक नोड बन गया, और उसका नेम क्या आ गया, तो उसका नेम आ गया है स्टार्ट. ओके, इसका नेम आ गया है स्टार्ट. और एक चीज बोली है मैंने, whenever you are means assigning a value at a runtime with the help of a malloc function, your variable always should be of a pointer type. आपका जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल हमेशा पॉइंटर टाइप का ही होगा. तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट डिक्लेयर किया है, दैट स्टार्ट जो होगा वो किस टाइप का होगा, तो वो होगा पॉइंटर टाइप का. ओके, तो ही आप लोग इसको malloc में वैल्यू असाइन कर सकते हो. सो दैट इज अ स्टार्ट, एंड स्टार्ट इज इक्वल्स टू malloc साइज ऑफ अ स्ट्रक्ट नोड. ये हो गया, इस तरीके से मेरा एक नोड क्रिएट हो गया. अभी क्या करना है, तो अभी स्टेप नंबर 2 में ऐसा बोला जाता है. ओके, स्टेप नंबर 2, इंसर्ट द डेटा. ओके, इंसर्ट द डेटा. डेटा किस में असाइन होना है, स्टार्ट में. कौन से पार्ट में असाइन होगा, डेटा पार्ट में. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज ना बहुत बार बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, ये होता है डेटा पार्ट. ओके, और ये होता है आप लोगों का लिंक पार्ट, राइट. फर्स्ट वाला पार्ट का क्या बोला जाता है, डेटा. नेक्स्ट वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, लिंक, है ना. ये हम लोगों ने कैसे बनाया था, आई एम अगेन राइटिंग हियर द डेफिनेशन ऑफ अ नोड. सो स्ट्रक्ट नोड, इंटीजर, डेटा, है ना. और सेकंड पार्ट को क्या बोला था हम लोगों ने, स्ट्रक्ट नोड, पॉइंटर ऑफ लिंक. ऐसे दिया था ना मैंने, जब मैंने डिक्लेयर किया था. तो ये हो जाते हैं 2 पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट को क्या बोला जाएगा, डेटा. इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, लिंक. एंड यू कैन क्लियरली सी लिंक में सिर्फ और सिर्फ एड्रेस जाएगा. व्हाई, बिकॉज इट इज अ पॉइंटर. और यहाँ पे डेटा में क्या जाएगा, एक्चुअल डेटा. तो व्हाट यू आर सपोज टू राइट, यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा डेटा, और यहाँ पे जो भी एड्रेस आप लोगों को स्टोर करना पड़ेगा वो एड्रेस लिखना है. अभी मैंने बोला था, अगर आपके जो भी नोड आप लिख रहे हो उसके आगे अगर कोई नोड नहीं होगा तो उसके लिंक फील्ड में क्या आना है, तो उसके लिंक फील्ड में आएगा नल. ऑलवेज रिमेंबर, यू आर क्रिएटिंग योर नोड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड यू कैन क्लियरली सी देयर आर नो नोड्स आफ्टर दिस स्टार्ट. इस स्टार्ट के आगे कोई नोड अभी बना ही नहीं है. तो इसका मतलब क्या, यस ईशा, unmute yourself. ना मैम, गलती से हो गया, सॉरी. Okay, rename yourself. ईशा, rename yourself. हाँ, चलो.
तो ये लिंक फील्ड में क्या मैम है? वो मैं बैक हो गई थी ना, इसलिए वो आ गया, मैं फिर से कर रही थी। ओके 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 ओके। और ये लिंक फील्ड में क्या आएगा? तो ये इस लिंक फील्ड में आता है एड्रेस। एड्रेस क्या आएगा यहाँ पे? नल आएगा। क्यों नल आएगा? बिकॉज स्टार्ट के आगे कोई है ही नहीं। हम लोगों ने पहली बार प्रोग्राम रन किया है, पहली बार मैंने इंसर्ट फंक्शन को कॉल करवाया है, तो ये फर्स्ट टाइम होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आना है? तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का नल। आई होप सो यू आर गेटिंग। तो ये मैंने डायग्रामेटिकली बना दिया, अब इसको मैं प्रोग्राम में लिखूंगी। तो अभी ये प्रोग्राम या एल्गोरिदम में ये कैसे लिखना है? तो वी नो ये स्टार्ट क्या है? ये पॉइंटर है। ओके, स्टार्ट इज अ पॉइंटर। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? तो स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर के अंदर व्हेनेवर यू आर पॉइंटर के साथ आप काम करते हो, राइट, तो वहां पे हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। मैंने जब ये स्ट्रक्चर लिया था ना, तब मैंने आप लोगों को बोला था। तो whenever you're having the object, the structure object as of a pointer type, you can't use a dot operator, you have to make use of a arrow operator। तो वो कैसे होता है? तो क्या करना है? एज अ स्टेप नंबर 2, यू वांट टू असाइन अ वैल्यू। वैल्यू किससे असाइन करनी है? डेटा पार्ट को। किसका है? स्टार्ट का है। सो स्टार्ट। ओके, आई कांट यूज अ डॉट एंड आई कांट राइट अ डेटा। ये डॉट डॉट नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? बिकॉज स्टार्ट क्या है? पॉइंटर है। ओके, देयर आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू हैव टू फॉलो, right? So as a start is a point of a pointer type, I can't use a dot operator. So whenever you're having the object, okay, structure object of a pointer type, always remember to use arrow operator। ओके, एरो ऑपरेटर किस तरीके से आता है ये एरो ऑपरेटर? तो माइनस का सिंबल, और आप लोगों को यूज करना है ग्रेटर देन वाला सिंबल, तो ये आ जाएगा एरो। तो स्टार्ट किसमें किसको डेटा असाइन करना है? डेटा पार्ट को। सो स्टार्ट ऑफ डेटा इज इक्वल टू व्हाट? तो स्टार्ट ऑफ डेटा इज इक्वल टू सपोज 10। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। पहले स्टेप में व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ नोड। किस तरीके से नोड क्रिएट किया मैंने? विद द हेल्प ऑफ अ मैलॉक फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ अ मैलॉक फंक्शन आई हैव क्रिएटेड अ नोड दैट इज start is equals to malloc size of struct node। As a step number 2, what I have done, I have assigned a data to the data part of a start node। किस तरीके से दिया? Start arrow data is equals to 10। As a step number 3, what I'm supposed to do, I have to adjust the pointer। Okay, I have to adjust the pointer, and as you can clearly see, this is the first and the last node, meaning is that इसका जो भी कोई link field होगा, इस field में क्या आना है? तो इस field में आ जाएगा null। तो किसको वैल्यू असाइन करनी है? स्टार्ट को करनी है। कौन से वाले पार्ट को देना है? लिंक वाले पार्ट को। तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट ऑफ लिंक इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू नल। क्लियर? कभी भी याद रखना, स्टार्ट ऑफ डेटा इज इक्वल टू नल नहीं लिखना है, और स्टार्ट ऑफ लिंक इज इक्वल टू 10 नहीं देना है। डेटा पार्ट सिर्फ डेटा पार्ट को ही देना है, और जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आप लोगों को लिंक पार्ट में ही देना है। इट्स ओके अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, आगे भी देखेंगे हम लोग, और एक नोड ऐड करना है, राइट? सो ये हो जाता है फर्स्ट नोड। आई हैव क्रिएटेड अ नोड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। दिस इज द केस नंबर 1। अभी देखो, और अभी इस डायग्राम को थोड़ा क्लियरली और अच्छे से समझ लो। सो व्हाट वी हैव राइट नाउ, तो मेरे पास अभी ना एक नोड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मेरे पास एक नोड ऑलरेडी है। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? तो यहाँ पे ना एक होता है, तो वी एक्चुअली फर्स्ट नोड जो होता है उसको इस तरीके से एरो दिया जाता है। ओके, इस तरीके से हेड नोड के तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज माय फर्स्ट नोड। नाउ यू कैन क्लियरली सी मेरे पास दो जगह है। आई हैव अ 2 पोजीशन राइट नाउ टू इंसर्ट द न्यू नोड। कहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ? ये स्टार्ट के पहले असाइन कर सकती हूँ, या ये स्टार्ट के बाद में आई कैन इंसर्ट द न्यू नोड। ये समझ में आ रहा है? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ना, ये सबसे पहली कंडीशन होगी जो हम लोगों को इंसर्ट में चेक करनी है। अगर मेरे पास एक नोड होगा, अभी मेरे पास ये स्टार्ट नोड है, तो अभी हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर फॉर यू टू इंसर्ट द वैल्यू? तो मैं ये स्टार्ट के पहले भी नोड इंसर्ट कर सकती हूँ, या मैं स्टार्ट के बाद में भी नोड इंसर्ट कर सकती हूँ। गेटिंग दिस पार्ट? तो अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, and that part is suppose you want to insert a new node at the beginning। okay, so that is at the start। मुझे जो नोड इंसर्ट करवाना है वो मुझे फर्स्ट और बिगिनिंग में और स्टार्ट में इंसर्ट करवाना है। तो इसका मतलब वेयर आई एम सपोज टू इंसर्ट द वैल्यू बिफोर द स्टार्ट, स्टार्ट के पहले करना है। अभी यहाँ पे देखना है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करूंगी मैं, और डायग्राम करने के बाद में ही आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, राइट? अभी कुछ भी नहीं, आई एम जस्ट erasing all the parts। I have added the new file and see what I'm having right now। I'm having the node like that। मेरे पास इस तरीके से एक नोड है, राइट? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टार्ट। राइट नाउ इसका नेम क्या है? इसका नेम है स्टार्ट।
इसके सॉरी इसके डेटा पार्ट में क्या है 10, इसके लिंक पार्ट में क्या है तो एड्रेस है, इसके आगे कोई भी नहीं है तो एड्रेस में क्या आ जाएगा नल। ये हो गया था हमारा स्टेप नंबर 1, वो भूल जाओ। अभी देखो मुझे नोड इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना है तो ये स्टार्ट के पहले इंसर्ट करना है। तो डायग्राम में मैं नोड कहाँ पे डालूंगी तो स्टार्ट के पहले डालना है। ओके, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे नोड डायग्राम ड्रॉ करूंगी उसी तरीके से साइड बाय साइड आई विल राइट माय एल्गोरिदम। ओके, ये बहुत इजी वे है एल्गोरिदम सीखने का। हाँ, सो सी I'm just drawing, I'm just adding one node over here। ये नोड मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे ये नोड को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड भी कर दिया। एंड राइट नाउ ये मेरा जो नोड है जो मैंने ऐड किया है उसका नेम है P। ओके, इसका नेम क्या है तो राइट नाउ इसका नेम है P। आई होप सो यू आर गेटिंग। तो अभी ये मुझे क्रिएट करना है तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा तो आई हैव टू राइट अ मैलॉक फंक्शन, है ना। आई हैव टू राइट अ मैलॉक फंक्शन। सो स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 आता है क्रिएट अ नोड। तो क्रिएट अ नोड, तो नोड किस तरीके से क्रिएट होता है तो नोड क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ अ मैलॉक फंक्शन। सो व्हाट आई विल राइट हियर, p is equals to malloc size of, राइट, malloc size of struct node। ये हो जाएगा मेरा नोड क्रिएट। ओके, ये ऐसे लिखूंगी तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी क्या करना है तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप तो अब हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप बोला जाता है इंसर्ट द डेटा। ओके, इंसर्ट द डेटा। डेटा किस में इंसर्ट होता है, लिंक फील्ड में या डेटा फील्ड में, कौन सा फील्ड में डेटा इंसर्ट होगा, इन अ डेटा फील्ड। रिमेंबर, ये जो नोड होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है डेटा, सेकेंड पार्ट होता है लिंक। लिंक स्टोर करता है सिर्फ और सिर्फ एड्रेस और डेटा पार्ट स्टोर करता है एक्चुअल डेटा। चलो, तो डेटा किस में डालना है, पी में डालना है। कौन से पार्ट में डालना है, डेटा पार्ट में डालना है। पी क्या है, पॉइंटर है, तो डॉट लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ, क्या यूज करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर। सो पी ऑफ एरो, किस पार्ट में डेटा डालना है, डेटा पार्ट में, और आई एम इंसर्टिंग द डेटा एज अ 20। ये हो जाता है मेरा नोड क्रिएट, और ये नोड क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 20 भी आ जाएगा। नाउ जस्ट सी हियर केयरफुली, यहाँ पे इसका जो स्टार्ट का एड्रेस है, सपोज दैट एड्रेस इज 100। ओके, इसका एड्रेस है 100, तो P में क्या स्टोर होना चाहिए, तो P के लिंक फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होना चाहिए। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है अभी राइट नाउ 100, तो व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल राइट द 100। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर 100। तो ये हो जाता है हमारा एल्गोरिथम के अंदर फर्स्ट स्टेप हो गया क्रिएट अ नोड, इंसर्ट द डेटा, थर्ड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट में क्या कर रही हूँ तो थर्ड पार्ट में एड्रेस स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आई विल जस्ट राइट द स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 को बोला जाता है असाइन द पॉइंटर। ओके, असाइन द पॉइंटर। तो जस्ट टेल मी, पी के कौन सा पार्ट असाइन करना है, अगर यू असाइनिंग द पॉइंटर तो लिंक पार्ट असाइन होता है। सो पी ऑफ लिंक किसको जाके अटैच होगा, ये तो ये अटैच होगा नेक्स्ट वाले नोड को। नेक्स्ट वाले नोड का नेम क्या है, तो नेक्स्ट वाले नोड का नेम है स्टार्ट। सो यू जस्ट हैव टू राइट हियर स्टार्ट। यहाँ पे क्या लिखना है, स्टार्ट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज याद रखना, अगर ये 100 भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, आई विल जस्ट रिमूव दिस 100 राइट नाउ। ओके, आई विल जस्ट रिमूव द 100 राइट नाउ। और ना मैं एक सिर्फ सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। लाइन कहाँ से कहाँ ड्रॉ होगी, वहां से स्टार्ट होगी जिस नोड से मुझे पॉइंटर असाइन करना है। तो किस नोड का पॉइंटर असाइन करना है मुझे, पी का, है ना। सो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगी, और जिसको जाके अटैच होना ना मुझे, वहां तक मैं लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। तो किस नोड को जाके अटैच होना है, स्टार्ट को। सो आई विल जस्ट राइट हियर स्टार्ट। गेटिंग, एक मैंने क्या बनाया, मैंने एक लिंक बना लिया बिटवीन पी एंड स्टार्ट। तो क्या हो रहा है, पी का कौन सा पार्ट आप असाइन मतलब असाइन कर रहे हो, तो लिंक पार्ट। किसको जाके अटैच हो रहा है तो स्टार्ट को। सो व्हाट आई विल राइट, आई विल जस्ट राइट हियर पी ऑफ लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट। ये ऐसा क्यों करना है, बिकॉज लिंक लिस्ट क्या बोलता है, तो लिंक लिस्ट में जो भी फर्स्ट नोड होता है, दैट फर्स्ट नोड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट नोड। वो नेक्स्ट नोड का क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई एक आप लोगों को एरो बनाना है। किससे एरो बनेगा, पी के लिंक फील्ड से। जिसको जाके अटैच होना है तब तक आप लोगों को एरो चलाना है। तो किसको जाके अटैच होना है राइट नाउ, स्टार्ट को। सो यही मैं एल्गोरिथम में किस तरीके से लिख सकती हूँ, दैट पी ऑफ लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट। पी ऑफ लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट। अभी आई नो टाइम नहीं हमारे पास, देयर ओनली 4 मिनट्स। फटाफट सिर्फ एक ही चीज मुझे पूछनी है, मुझे सिर्फ पॉइंटर एडजस्टमेंट बताना है यहाँ पे कैसे होगा। दिस इज द फर्स्ट नोड, दिस इज द सेकंड नोड, और इन बिटवीन, ओके, ये दोनों के बीच में मुझे अभी ये नोड ऐड करना है, राइट। आई वांट टू ऐड दिस न्यू नोड बिटवीन दिस फर्स्ट एंड द सेकंड, और इसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ राइट नाउ। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को
मुझे सिर्फ पॉइंटर बताने आप लोगों को, राइट? सो आई विल जस्ट गिव सम नेम ओवर हियर. सो दिस इज P. समवट कॉम्प्लिकेटेड आई नो, बहुत ज्यादा नहीं है. अगर एक बार समझ में आ जाता है तो यू कैन राइट योर कोड एट प्रोग्राम एट योर ओन. चलो, तो ये है P, ये है Q, ये है R. ओके, टेल मी क्या है राइट नाउ. तो अभी के लिए जो है that P is holding the address of a Q. Okay, P is holding the address of a Q. और Q के अंदर क्या है? Yes, very good, very good. Right, अभी ये Q है. ये Q क्या है? It is a last node. तो इसके लिंक फील्ड में क्या आएगा? What will be there in the link field of the Q? क्या आएगा यहाँ पे? null, null, Null. ये समझ में आ रहा है सबको? null. Yes, so null. अभी क्या करना है ना मुझे? तो I want to insert this R in between. ये जो R है वो मुझे P और Q के in between डालना है. तो इसका मतलब क्या? P के लिंक फील्ड में क्या आना चाहिए अभी? वेरी गुड. P के लिंक फील्ड में क्या आएगा? R. वेरी गुड. ये समझ में आ रहा है? अभी ये किसको जाके अटैच होना है? तो ये इट विल अटैच टू द R. तो P के लिंक फील्ड में क्या आएगा? R आएगा. और R के लिंक फील्ड में क्या आएगा? Q. वेरी गुड. और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, वी विल ट्राई, वी विल कंप्लीट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, कितने लोगों को समझ में नहीं आया है फटाफट से हैंड रेज कर देना. सो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा फ्रॉम वेयर आई वांट टू स्टार्ट. जस्ट रेज योर हैंड्स. मैं कुछ यहाँ पे आप लोगों को पनिशमेंट नहीं देने वाली हूँ, राइट?